Hey Altaf bhai, Hi. Hi, Nimit. How are you? I'm good, good. So hard to catch the photojournalist. No, actually, there was some Even issue with my so hard to phone. catch the I had to Ravi restart it. Chaudhary bhai na. Uh, the, I can get sorry. it because everyone is working from home, so obviously networks में काफी problem Yeah, आ रही है आजकल. Yes. बिल्कुल. Uh, Network is busy. so you are shooting coronavirus as well these days on a field. हाँ, So yeah. let me start with that, and then I will come to the your photography journey. That how difficult it is to Hmm. shoot these days, because we also know that there are so many people who they don't care about the precautions. They don't wearing masks, but you have to be there. You have to shoot. You have to document. So how difficult is for you or for any photojournalist who are shooting right now on a field? Uh, it's really very difficult, and it's more uh, serious and dangerous than shooting conflict or war actually, because conflict में आपको आपको मालूम है कि आगे से कोई है जो अटैक कर सकता है. Hmm. यहाँ पर इस सिचुएशन में यू डोंट नो कि हु इज इन्फेक्टेड और कोई चीज पे इन्फेक्शन है क्या. तो आपका जो अभी एनिमी है जब आप फील्ड में है तो वो इनविजिबल है टोटली. Hmm. अच्छा दिखने वाला आदमी भी इन्फेक्टेड हो सकता है. हाँ. Yes. समटाइम्स हम खुद इन्फेक्टेड हो सकता है जिसकी वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं. Yes. ये चीज बहुत सीरियस है और जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं इट्स रियली रियली harmful for them and their families क्योंकि when they go back they can infect their family members. Hmm. So Hmm. we have to be very careful while. Is it my network slow or your network slow? I have no Yeah. idea. It can be either. Okay. Let me come to the another part which is related to, like, आपने कोरोना भी आप शूट करे हैं, आपने काफी सारे वॉर्स Hmm. भी शूट किए हैं, and there are some moments when जिनको देख के normal people get emotional, but as a photojournalist it's your job to document that thing. You have to It's your job to shoot that thing. So how difficult is that to handle that atmosphere? Because I know that some of your I have read about some documentary जो आपने कश्मीर में भी करी है, जो आपने अफगानिस्तान में भी करी है, लीबिया में करी है. So yeah, so how difficult is for any photojournalist to control your emotions at that time? Yeah. uh, उसमें what we usually do is you get yourself busy with camera settings. आप उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते कि क्या हो गया यार, मतलब लोग मर रहे हैं या जो भी वहां पर हो रहा है. जो आप सोच रहे हैं उस टाइम पे टू अवॉइड दोज इमोशंस ओवरवेलमिंग यू इज कि आप कैमरा सेटिंग्स के बारे में सोचते हो, आप नए एंगल्स ढूंढते हो, आप लाइट देखते हो कहाँ पर अच्छी है टू गेट द बेस्ट ऑफ इमेजेस वहां पर उस सिचुएशन में. सो अब वो चीज एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, तो it can be really affect your psychology. It can affect your family life. It can affect your social life. लेकिन as a journalist, as a photojournalist, it's your responsibility to to show what's happening.
So sorry guys, because I think अल्ताफ भाई का ना नेटवर्क थोड़ा स्लो है या तो मेरी, so I think उसकी वजह let से me let me थोड़ी connect प्रॉब्लम on आ रही है. let me connect let me connect on Yeah, 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 different yeah, yeah, Wi-Fi. cool, cool, cool. Okay. Yeah, yeah, cool, Yeah. cool, 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 cool. Yeah. Yeah, I'll come back. yeah. Uh, because these days everyone is working from home ना, तो काफी बार मेरे साथ भी अब 3-4 सेशन से हुआ है कि मेरा नेट भी कई बार बहुत ज्यादा लैग कर जाता है, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है. या अल्ताफ सर विल कम बैक, वो अपना कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई, तो उसके बाद दे विल ही विल कम बैक एंड वी विल कंटिन्यू, बिकॉज मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा लैग हो रहा था, इट वाज लैकिंग अ लॉट. सो लेट्स सी, let me take some questions from the screen tab tak. Hello Yogesh sir, how are you? Yeah, Kajol, he is coming. मेरी थोड़ा नेटवर्क का बहुत पंगा है यार, so sorry for that. Inspiration to Kashmiri journalists for generation to come. He's, I think, Atesh, he's an inspiration for so many other journalists as well, like not just the Kashmiri, for everyone, I think. Okay. Yes, now it's fine. Yes. All right. Ji. Yeah. So where were we? You were sharing that how to control the emotions. You up. So you keep yourself busy with camera settings, how to get the best of the situation, and और जब आप वापस जाते हैं, and then it starts haunting you. लेकिन which can really वो जब accumulate हो जाता है brain में, तो it can really harm your psychology, it can harm your social life, family life. लेकिन it's the responsibility of a photojournalist or as a journalist to witness and share with the greater world कि क्या हो रहा है. I mean, and try to influence people who have control over the situation to make those things cease. हमारी कोशिश होती है कि इस काम से जितना भी हेल्प मिल सकता है या जितना भी लोगों को अवेयर किया जा सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं. And then we leave up to people who are in power or who can control all this. हमारा काम है लोगों को आगाह करना. That's it. ओके ओके ओके. मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट की जब मैंने आपका पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था यू आर द कंप्यूटर इंजीनियर बिफोर. तो कंप्यूटर इंजीनियर से फोटो जर्नलिस्ट, ये कैसा स्विच हुआ एकदम से? ऐसा था कि you know how our society and families work. Everybody wants to become a doctor, an engineer, scientist or whatever. लेकिन जो नसीब में होता वो होता है. So in my case मैंने एजुकेशन तो कंप्यूटर्स की लेकिन and I was working actually as a system administrator with a company in Delhi. लेकिन वो कंपनी बंद हो गई 2000 में due to recession. फिर I had nothing to do. So since there's a story कि मेरा फोटो जर्नलिज्म में क्यों और कैसे जाने को मन कर रहा था, it also had a story. So when I got a chance to do photography, so I jumped and it worked. Now it worked really well because you are inspiration. Someone also wrote that you are the true inspiration for many Kashmiri photojournalists, upcoming journalists. But I said not just for the Kashmiri journalist, Kashmiri photojournalist, he is an inspiration for so many other photojournalists all over the world as well. Because your work is so good. Your work is so good. Jay Thakur and Kajol ने 2 questions पूछे थे. मैंने उनको mix कर दिया है. So
Who gave you the title of toughest man in India and the reason behind it? Second, you have covered most of the modern wars in Syria, Afghanistan, and India, but the most talk about is the Libyan conflict. Can you tell me more about it? I'm sure these two are connected with each other. पहला वाला क्या था कि A toughest man आपको हाँ, किसने I कहा don't know. और क्यों? It was actually there's this it is Men's Man XP. XP. Man XP. Yeah. Yeah, they were doing a series on actually on eight people whose jobs were tough. So उसमें काफी सारे थे. There was a fireman, a Delhi fire uh, के थे. एक एक बॉलीवुड के स्टंट एक्टर थे और काफी सारे ऐसे थे और मैं भी उनमें से एक था. सो जो उन्होंने टाइटल रखा था टफेस्ट मैन, जो कि मैं अपने आप को नहीं मानता. देयर इज नथिंग लाइक टफेस्ट. That's great. एंड व्हाट अबाउट मैगी? काजोल ने आपसे पूछा है कि आपने सीरिया, अफगानिस्तान और इंडिया में काफी वॉर्स को कवर किया है. इंडिया में तो नहीं एक्चुअली, आपने सीरिया एंड अफगानिस्तान में किया है, बट लिबियन जो था आपका, सबसे लीबिया वाला जो था, वो तो मैंने भी, सैबी ने भी मेरे को बताया था, जो आपने इद्रिस सर वाली में शेयर किया था. सो कैन यू टेल अस द व्यूअर अबाउट दैट सीन, हाउ यू सर्वाइव, हाउ यू, और इन शॉर्ट. इन शॉर्ट में ये था कि ओवर कवरिंग लीबियन वॉर इन 2012 अप्रैल, और मैं असाइनमेंट पे था. तो वी यूजुअली यूज्ड टू गो फ्रॉम बंगाजी टू फ्रंट लाइन थोड़ा अराउंड 150 किलोमीटर बेंगाजी से था. इट वाज अनदर टाउन इन अजदाबिया. तो हम रोज सुबह बेंगाजी से अजदाबिया जाते थे और फ्रंट लाइन चेंज होता रहता है, क्योंकि एक दिन इस रेबल्स का जोर होता है और अगले दिन फोर्सेस का जोर होता है. सो इट कीप्स मूविंग. तो उस दिन हम शूट कर रहे थे फ्रंट लाइन पे, जहाँ पर चेक पॉइंट था, लास्ट चेक पॉइंट जहाँ तक जर्नलिस्ट अलाउ थे. सो मैं एक ग्रुप ऑफ रेबल्स के साथ उनकी पिकअप व्हीकल में चढ़ा. इस पे रॉकेट लॉन्चर्स थे और उनके साथ मैं डेजर्ट में गया शूट करने के लिए. And they were supposed to throw the launchers towards Gaddafi forces position. तो जैसे उन्होंने शूट किया, रिटर्न फायर में बहुत फायर आ गया रिटर्न. सो वो इतने हड़बड़ा गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो भाग गए गाड़ी में, और मैंने भी जंप किया गाड़ी में. लेकिन जाते जाते, सिंस डेजर्ट है तो उसमें बम्प्स है, और वो जब जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते एक और रॉकेट फायर किया. हाँ, और मैं रॉकेट लॉन्चर जहाँ से फायर जाता उसके नीचे बैठा था. तो उस इम्पैक्ट से मैं बाहर आ गया गाड़ी के. गाड़ी के बाहर हो गए. हाँ, कि वो ओपन ट्रक था. तो जब मैं बाहर नीचे गिर गया एंड आई गॉट अप, तो वो रुके नहीं, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे. एक्चुअली वो रेबल्स जो थे वो ऑर्डिनरी लोग थे, वो ट्रेंड मिलिट्री नहीं थे. सो वो डर गए और वो भाग गए, और मैं वहां पर अकेला, और गोलियां चल रही है. आई कुड सी, आई कुड हियर, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि कोई आवाज आती है, पता नहीं है कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, बट आ रही है. आई कैन सी देम हिटिंग द सैंड. सो मैं सोच रहा हूँ यार इसमें एक ना एक तो लग ही जाएगी. लेकिन लकीली मैं भागा और मैं चेक पॉइंट तक पहुंच गया. लेकिन जब मैं चेक पॉइंट तक पहुंच गया तो वहां पर सन्नाटा, जितने भी जर्नलिस्ट, जितने भी रेबल्स, वहां कोई नहीं, एब्सोल्युटली डेजर्टेड. देन मैंने सोचा कि पीछे तो वो फोर्सेस है, आई हैड टू हाइड. सो मैं उसी वहां पर एक गैस स्टेशन था, उसके पीछे रूम्स थे. उन रूम्स में से एक रूम में छुप गया. एंड देन एट नाइट उसके साथ में कुछ घर थे, वहां पर चला गया और मैंने रात वहां स्पेंड की. सुबह अगले दिन 5 बजे आफ्टरनून में रेबल्स का फिर से
फिर से कंट्रोल हो गया और मैं वहां से निकल गया। इसमें मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया है हाँ सारा, पूरा उसमें आपका, वीडियो यस भी, पूरा हाँ लिबिया वाला, वीडियो यस भी लिबिया है, वाला आप, हाँ यस। वीडियो भी है और स्किल्स भी है और के हाँ कंप्लीट उसमें ये भी स्टोरी है। लाइक सो आपकी व्होसएवर लाइफ, या वो या आपकी कैसे लाइफ स्टोरी जो एग्जैक्टली, मेरे को सैबी ने या आपके आपको सैबी ने जो मेरे को बताया था दैट यू शेयर्ड के आप 3 घर थे वहां पे, आप एक घर पे जाके छुपे एंड हाँ बिल्कुल सेंटर वाला घर है, या दे आर बॉम्बार्डिंग एवरी मतलब एक एक यस, करके, एंड आप हाँ लास्ट वाले में वीडियो में है कि यू आर या सेइंग के यार अब तो मैं गया, अब तो गया, गॉन, बट लकीली दे लिव दे दैट डिडंट वन, शूट इन मतलब दैट उन्होंने वन, या हाँ हाँ एंड यू सर्वाइव, मतलब व्हिच इज अ वेरी मतलब लाइक हम मूवीज में तो इट्स देखते हैं बट आपने रियल लाइफ में मिरेकल, आपने या दैट, कुछ पता नहीं किन की दुआएं काम आ गई बस। नहीं दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। मैं बहुत ज्यादा मैं लगता बहुत इजी है लोगों को, जर्नलिस्ट का काम बहुत इजी होता है, बट जो शूट करते हैं ना सिर्फ उनको पता होता है हाउ हार्ड इज दैट, क्योंकि या एक गलती आपकी लाइफ और यू नो डेथ के बीच में होती है, सो विच इज अ वेरी बिल्कुल, बिग थिंग। यू आर फ्रॉम कश्मीर, अ प्लेस जिसको लोग कहते हैं हेवन, लैंडस्केप वहां के इतने फेमस हैं, पोर्ट्रेट्स वहां के इतने फेमस हैं, बट व्हाई फोटो जर्नलिज्म? why not landscape photography? Why you choose the photojournalism? And I राइट। want to add one more. I want to add one more question. Okay, who was your inspiration when you started photography? तो लेट मी स्टार्ट एक्चुअली, ऐसा हुआ कि एक बार मैं शाम की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आ रहा था, हमारे मस्जिद पास में ही थी, तो हमारे घर के पास में एक सिनेमा है जिसमें सिक्योरिटी कैंप बना हुआ था। आई मीन सिनेमा को सिक्योरिटी कैंप में तब्दील किया गया था। Change कर, तो हाँ हाँ उस पे ग्रेनेड अटैक हो गया था। सो व्हाट हैपन, क्योंकि मैं मस्जिद से आ रहा था और हमारे घर के बाहर एक गली है छोटी सी, तो मैं जैसे ही उस गली में घुस गया तो वहां पर बीएसएफ के लोग थे और उन्होंने मुझे पकड़ा। उन्होंने कहा कि आपने ही ग्रेनेड चलाया। मैंने कहा मैं तो मस्जिद में, ये मस्जिद है, मैं ऐसे, और उनको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं और मैं तो यहाँ से, वो देख रहे थे मैं कहाँ से आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको रुकना है। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे ह्यूमन शील्ड बनाया एंड दे आस्क्ड मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लेन, क्योंकि वहां से फायरिंग हो रही थी। हम्म तो लकीली फायरिंग रुक गई और उस टाइम पे 6:15 थे शाम के, और लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक उन्होंने मुझे रखा। और मेरे एक अंकल जो मस्जिद में फंसे थे, वो जो वापस आ रहे थे 9:30 बजे, उन्होंने, वो जो कमांडर थे उनके, वो उनको जानते थे। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा मान लीजिए बेटा है, तो इन्होंने आप इसको आपने क्यों ऐसे रखा हो? उन्होंने कहा जी हमने ऐसे रखा, ग्रेनेड अटैक हुआ हुए। ने कहा जी इसको जाने दीजिए। एंड देन आफ्टर थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन वो चीज़ मेरी फैमिली वो डर गए थे काफ़ी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ नहीं रहना है। उस टाइम पे जब मैं वहाँ पर था एक्चुअली, तो मेरे दिमाग में आया कि काश मेरे पास एक कैमरा होता, आई वुड रिकॉर्ड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है। तो so उस टाइम it's से like a you can show the reality कि क्या हुआ यस, था और कैसा आप या लोग क्या हुआ समझ था, रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ उसी टाइम पे मेरे दिमाग में घुस गया कि जब भी मुझे चांस मिलेगा आई विल बी समबडी हु वुड। उस टाइम पे ये ऐसा नहीं था कि मैं फोटो जर्नलिज्म ही करूंगा, मैंने यही सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि कश्मीर में क्या हो रहा है। एंड देन इट टर्न आउट टू बी अ जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, एज अ फोटो जर्नलिस्ट। सो मैं कलकत्ता गया, वहाँ पर मैं 1 साल रहा एंड आई डिड माई कंप्यूटर का पहला कोर्स मैंने किया, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर नए नए आए थे, 96 की बात है, 96 97 कंप्यूटर्स नए नए आए थे। तो मैंने भी कोर्स किया, मैं वापस आ गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद लोकल न्यूज़पेपर एज डीटीपी ऑपरेटर। और मैं रात को उर्दू अखबार एक्चुअली टाइप करता था सॉफ्टवेयर पे, जो पहली बार उस न्यूज़पेपर में हो रहा था
एक्चुअली पहली बार कश्मीर में हो रहा था। तो उस न्यूज़पेपर में काम करने के बाद आई गॉट एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म कि जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं, एंड आई गॉट फैसिनेटेड विद फोटो जर्नलिस्ट। कर्फ्यू होता था, बॉम्ब ब्लास्ट, तो ये लोग जाते थे, मैं सोचा वाओ, जहाँ से सारे लोग भागे आते हैं ये लोग जाते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। एंड देन वो चीज़ जो ह्यूमन शीट वाला था वो हमेशा दिमाग में था, यार ये तो अच्छी। और एक चीज़ था कि आपके पास जो प्रेस कार्ड होता था तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी आपके लिए। आपको फोर्स तंग नहीं करते, ज्यादा तंग करते थे लेकिन ज्यादा, मतलब आपसे मारपीट कर सकते हैं लेकिन आपको मारेंगे नहीं, आपको डर, ज्यादा उनके अंदर दिक्कत डर नहीं था होगी। थोड़ा। हाँ, यू नो एज कम्पेयर टू सिविलियंस के साथ तो कुछ भी कर सकते थे। सो मैंने सोचा कि यार अगर मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, मुझे तो फिर डरने की बात भी नहीं है, मैं काम भी करूंगा और यू नो और मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है। सो इट वाज लाइक, लेकिन लेकिन मुझे कंप्यूटर पे, मतलब कंप्यूटर कोर्स मैंने स्टार्ट किया था और घर वाले भी चाह रहे थे कि मैं कंप्यूटर्स करूं, बट देन यू नो आई वेंट टू दिल्ली after some time around 1998-99 after my graduation. So मैंने दिल्ली में कंप्यूटर्स किया और फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया वहाँ पर। जॉब करने के मेरे 6 या 7 महीने के बाद ही वो कंपनी बंद हो गई और आई वाज जॉबलेस। उन दिनों मैं मेरी एक चैट फ्रेंड हुआ करती थी, मैं याहू मैसेंजर पे बहुत चैट किया करता था क्योंकि नया नया चैट हुआ करता था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे यू आर एबल टू टॉक टू समबडी जो दूर दूर है। और मेरी एक मलेशियन फ्रेंड थी, तो वो यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग कि दिन में क्या हुआ था, अच्छे दोस्त थे हम। तो उसको मैंने बोला यार मेरी जॉब चली गई है ना ऑल दैट, लेकिन मैं फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है। कैन यू फाइंड आउट कि मलेशिया में अच्छा खासा कैमरा कितने में आता है, क्योंकि वही नो कि इंडिया में आते आते टैक्सेस बढ़ जाते वो। हाँ, मैं तब तो ये था कि बाहर से बहुत सस्ता मिलता था। हाँ, यस यस यस। so she found out a camera and then she told me कि इतने का आता है। मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो एक दो दिन बाद she told me I can send you the camera and you can pay me back whenever you have the money। मैंने कहा यार how can you trust somebody you just met online। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ क्योंकि काफी सारे केसेस हुए थे। यस यस यस। I don't think ऐसा होगा लेकिन I want to give a try। So she sent me the camera। और कैमरा आ गया, it got stuck with customs। Customs wanted 15,000 rupees और मेरे पास वो भी नहीं थे। तो मेरी सिस्टर है, उसने सेविंग करी हुई थी and she gave me all her savings। So I got the camera released and I started shooting जैसे एमेच्योर लोग करते हैं, फूल पत्ती लोधी गार्डन ये वो। लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। और मैं शूट करके इस न्यूज़पेपर के पास जाना, उसके पास जाना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था ऑब्वियसली क्योंकि काम कुछ था ही नहीं। आई मीन हाउ कैन समबडी गिव वर्क टू एन एमेच्योर जिसने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड देन वन नाइट I used to stay in कालका जी के पास। कालका जी के पास में रहता था, एक कमरा था और एक रात मैंने सायरन्स की आवाज सुनी। काफी सारी सायरन्स चल रही थी, गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की सायरन गाड़ियां होती है उसमें सायरन्स सुनी, मतलब 10-20 गाड़ियां। मैंने सोचा यार कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है। सो मेरे पास 4 रोल फिल्म थे और मैंने सोचा गाड़ी के पीछे पे किया जाए एंड देन सी कहाँ जा रहे हैं। तो मैं गाड़ी के पीछे लग गया एंड वी वर इन ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, वो पास में ही है। और वहाँ की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी भयानक। सो 8:30
बजे से सुबह के 5:30 या 4 बजे तक मैंने शूट किया, और मैं ऐसे ही शूट करता रहा, किसी किसी के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंटल शूट किया। तो आई गॉट बैक, आई टुक सम रेस्ट, और सुबह मैं रोल्स मैंने प्रोसेस किए, प्रिंट निकाला, एंड आई वेंट स्ट्रेट टू टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस, ITO। आईटीओ। तो हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पर रिसेप्शन पे, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं रिसेप्शन पे बोला कि मुझे फोटो डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे बात करनी है। तो उन्होंने रिसेप्शन से कॉल लगाया, वहाँ पर चीफ फोटोग्राफर नहीं थे, तो उनके डिप्टी थे। मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये फोटो है, क्या आप देख सकते हैं? तो वो नीचे आ गए, एंड देन he saw the photos and he said, फोटो तो ठीक है लेकिन we can't run them, ये कल का इंसिडेंट है और हम डेली न्यूज़पेपर है, और हम कल के एडिशन में इसके it will be too late, so we can't use them, sorry, you can go to any magazine, क्योंकि उनके पास स्टोरीज होती हैं, हो सकता है आपका। एंड देन उन्हें मुझसे नंबर ले लिया, एंड देन आई वेंट टू इंडिया टुडे ऑफिस, आई वेंट टू आउटलुक ऑफिस। तो मतलब वही स्ट्रगल कर रहा। एंड देन फाइनली आई रियलाइज कि दिल्ली में तो कुछ नहीं होना, लेट मी गो बैक। सो तो मैं वापस श्रीनगर आ गया, and I started working with another local newspaper uh, uh, as a photojournalist now, for a salary of 1,000 rupees. मैंने सोचा सैलरी तो मतलब सैलरी तो है नहीं, ये तो खर्चा ही हो जाएगा सारा, 1,000 रुपये क्या होता है। I took it as an investment in my career. मैंने सोचा इससे मुझे पता चलेगा कि फोटो जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं एक्चुअल। हाँ, से एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा कि 1,000 भी ओके है। So I started working during the day. I worked as a photojournalist, or at night I used to work as DTP operator or other newspaper. So मैं completely involved हुआ था। ये 2002 की बात है, नवंबर approximately. Yeah, in February I'm getting call from the guy I met at Times of India office, Harry Staggy. So he told me, Altaf, I have joined EPA as Indian subcontinent chief. Would you like to work from Kashmir for us? मैंने कहा, wow, of course. So EPA started this international operations in May 2003. तो तब से मतलब प्रॉपरली मैं शूट कर रहा हूँ। May 2003. So you started in 1996 with a camera, but in 2003 Not with a you camera. Camera से I started around 2001. Okay, so maybe it took around 2 years to get a first job, I can say. Yes. So Yeah. yes. So जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में शेयर किया कि आपको बचपन में ऐसे पकड़ा गया, एंड तो that's why you decided कि यार मेरे को अपनी फोटोग्राफ से, so that's why I think you always say that I read somewhere that you said कि I take photographs to create difference. Like you don't take photograph just for the fun, you click photograph to create a difference in the society. Yeah, I mean, see, जब हम कोई काम करते हैं, हम क्यों करते हैं? या तो पैसे के लिए करते हैं, ऑब्वियसली। जब आप काम करेंगे यू वुड एक्सपेक्ट सम रिटर्न, लेकिन कितना अच्छा होगा कि जो हम काम करते हैं उससे अगर दूसरे को हेल्प मिले या दूसरे की जिंदगी संवारे, दैट वुड बी अमेजिंग, इजंट इट? सो to be able to do that is something amazing. और सबको ये चीज नसीब नहीं देता ऊपर वाला कि जो लोगों की जिंदगी चेंज कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने
बहुत कोई तीस मार खाऊं, लेकिन जहां भी कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकता है। अगर सारे लोग कोशिश करें, it can really change the society. Change the society, yeah. So Yeah. let me come to the second question with that thing. Garima Agarwal ने आपके लिए send question भेजा, and I think this is the right moment. You won a honorable mention in the WordPress photo contest in 2013 for your first school for less fortunate a story. आपने जो school under bridge के ऊपर किया था. So as a result, which the school has got funds and support. Can you tell the story behind it and how you came across that school? Plus another question, the same इसी से related. Please tell us about your story. Like if someone don't have a like press ID, if I'm not a photojournalist, but I have to document that place. So how can someone go and document? Is it easy or we need permission from somewhere else? Yeah. First of all, story के बारे में कि कैसे. Yeah. See, working with a wire agency or any newspaper, आपको आप कभी कभी घूमते रहते हैं फोटोग्राफ की फोटोग्राफ लेने में के लिए अब घूमते हैं, कहीं पे कुछ मिलेगा, डेली लाइफ स्टाफ. तो मैं उन दिनों मयूर विहार में रहता था, और मैं एक बारी ये हल्की हल्की सी ठंड स्टार्ट होने लगी थी. मैंने सोचा कुछ डेली लाइफ शूट किया जाए. यमुना बैंक का जो मेट्रो स्टेशन है उस साइड में काफ़ी सारी सब्जी के बाग है. तो मैंने सोचा वहाँ जाके थोड़ा फोटो बना लूँ. तो ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे आ गया. मैंने 2-4 बच्चों को कुछ कॉपी वॉपी लेके वहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे, मेट्रो का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे मैंने देखा. तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं. सुबह सुबह था और ठंड थी और वहाँ कोई आसपास स्कूल भी नहीं है. मैंने सोचा इनसे पूछूं कि क्या कर रहे हैं. मैंने से पूछा बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पर. कहा सर हमारी स्कूल का वेट कर रहे हैं, स्कूल अभी स्टार्ट होगा. मैंने कहा स्कूल कहाँ पर है. कहा ये हमारा स्कूल है. एंड ही पॉइंटेड towards empty space under the metro bridge. Yeah. तो स्कूल कहाँ है. कहा नहीं हम यहीं पढ़ते हैं, अभी सर आएंगे. मैंने कहा वाह ये तो ठीक है. मैं कहा ठीक है. सो आई वेंट अहेड. 1-आध घंटा हुआ होगा. आई गॉट बैक. तो सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे थे वहां पर, और बच्चे, और मैं रुक गया. सो आई थॉट लेट मी वेट फॉर the guy who is who teaches them. थोड़ी देर में एक आदमी आए. तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्कूल आप चला रहे हो. उन्होंने कहा हाँ मैं 3 साल से चला रहा हूँ. और मैंने कहा क्यों चला रहे हो, आप क्या करते हैं, आप टीचर है. उन्होंने कहा नहीं मेरी दुकान है ग्रोसरी, लेकिन मैं 1-2 घंटे बच्चों के लिए यहाँ आता हूँ, इनको मैं पढ़ाता हूँ. आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. मैंने कहा यार इस टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम लोगों के लिए सर्व करते हैं. मैंने उनसे पूछा कि मैं शूट करता हूँ. हाँ कर लीजिए. तो जैसे मैं स्टार्ट किया उस दिन, आई थॉट कि ये एक दिन वाला स्टोरी नहीं है. इट नीड्स प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पहले दे टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द फोटोग्राफर. सो तो मैं ऑलमोस्ट रोज जाता था वहां पर, बच्चों से बात करता था, बैठता था. ये जरूरी नहीं था कि मैं स्टार्ट से ही शूट करूं. नहीं, आई वुड गो देयर, सिट विद किड्स, टॉक टू देम. सो जब मैं एक्चुअल शूट कर रहा था they wouldn't pay any attention, so they were natural. जैसे भी वो होते थे, खेलते हैं, मस्ती करते हैं. और जब ये स्टोरी वो वायर पे आ गई, रिलीज हो गई, तो मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आ गए. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर
wanted to help the school. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि they want to build a school there, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि it's illegal to build anything. मैंने कहा साहब मना किया कि that can't happen because it's illegal. But what you can do is you can directly help the guy, and so I used to put them in touch with Rajesh Kumar, जो स्कूल चलाते थे, चला रहे हैं राजेश शर्मा. हाँ हाँ राजेश शर्मा. सो ये ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, और जब उसको वर्ल्ड प्रेस प्राइज मिला, देन इट क्रिएटेड मोर अवेयरनेस. सो लोग बाहर से आए. देयर वाज दिस NRI who had come from London, and he went to the school, मैं उनके साथ चला, and he got new uniform to kids, new bags, new shoes, नीचे बैठने के लिए कारपेट, कार पे वो जो आपकी, यस, हाँ, और पीने का पानी, और टॉयलेट का अलग से एनक्लोजर बनाया. सो स्लोली एंड स्टडी वहाँ पर अच्छा खासा होने लगा. अब तो वहाँ पर वॉलंटियर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, और वहाँ का जो वॉल है जहाँ पर ब्लैक बोर्ड बना था, अब वहाँ पर फूल बने हैं, पेंट हो गया. यस. अब आप देखते हो कि आपकी थोड़ी सी मेहनत ने काफी सारे लोगों की जिंदगी बदली होगी. और वहाँ के कुछ लोग हैं, मैं राकेश से इन टच हूँ, एंड वो मुझे यूजुअली यूज्ड टू टेल मी कि कौन सा बच्चा अब क्या करता है, कोई पॉलिटेक्निक गया है, कोई वहाँ गया है. सो इट ऑलवेज गिव यू सेटिस्फैक्शन कि थोड़ा सा. Yes, yeah. 4 years ago, I celebrated my birthday there, and we did a full bhandara. We did a full bhandara with the students, kids, and we also donate the stationery, pencil, book, and everything. And राजेश शर्मा जी बता रहे थे कि हमारे ऊपर तो बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत लोग आते हैं वीडियोस बनाने. He became a sensation with media. उसके बाद actually there's not a single media organization जिन्होंने उसके ऊपर स्टोरी नहीं किया. And yes. He was invited for FM shows and all that. So yes, FM shows and all. So बहुत अच्छा लगता है. So, काफी सारे, काजोल, मैंने, सैवी ने, we donated some money and we gift them the stationery, थोड़ी candies and pencil, everything. So it was actually good. It's sometimes ना it feels good कि आपके थोड़े से पैसों से किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है, and you are trying something to make their future better because they want to study and आपके थोड़े पैसे उनका फ्यूचर बना रहे हैं. So that is a good thing actually. जब मैं वहां जाता था, I used to see कि some of the kids were so bright, उनको पढ़ने की कितनी चाह है. Yes. उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे ऐसे बच्चे. Yes, exactly. So आपने you are from Kashmir and you have documented Kashmir so well. मैं कि आपने बहुत ज़्यादा document किया है. How difficult is for you even to shoot in a Kashmir? Because as a Delhiite ना लोग कहते हैं यार दिल्ली में ना रहना बहुत मुश्किल है. But as a Delhiite I know how to handle Delhi. I know Delhi is tough for everyone, but I know how to handle Delhi. So आपके साथ ऐसा है कि for you as a Kashmir as a from Kashmir hometown, you know that how to handle Kashmir. या आपको भी कई बार difficulties होती हैं as a photo journalist to document the document the stories because the people are so fed up. Like everyone is coming there, everyone is shooting them. They get irritated sometimes. कि why they are coming, why they are shooting us. So आपको भी कभी ऐसा face हुआ है या फिर it's easy for you? और no. I want to add one more thing because ये शायद काजोल ने मुझे भेजा था. If non-photo journalists want to document Kashmir, so it is difficult for them. पहले वही से स्टार्ट करते हैं. It is difficult क्योंकि जब आप कुछ ऐसी सिचुएशन में शूट करते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, हालात खराब हो, then you must have some press credentials आपके पास, आप जर्नलिस्ट हो. क्योंकि इसमें खाली शूट करने तक चीज़ें नहीं होती. I mean, what if आपको
कोई प्रॉब्लम होगी, व्हाट इफ आप इंजर्ड हुए, आपका खर्चा कौन उठाएगा? हु विल हेल्प यू? सो अपार्ट फ्रॉम कि आप शूट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, चोरी छुपे तो शूट किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हु विल सेव यू? यू नो, एज अ जर्नलिस्ट आपको ऑफिस से इंश्योरेंस मिलता है, आपको सिक्योरिटी गियर मिलता है, और आप एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होके आपको सिक्योरिटी या लोग आपकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हालत ख़राब ना हो तो आपको वो कह सकते हैं कि आप क्यों शूट कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई लोग प्रोपेगेंडा के लिए शूट करते हैं, तो वो शूट करके अपने उसमें कोट्स डालेंगे, कुछ वैसा वर्ड डालेंगे, एंड देन शो टू द वर्ल्ड की ये खाली कश्मीर की बात नहीं, कहीं से भी। सो कोई भी टोटल डिफरेंट स्टोरीज। हाँ, टू हैंडल दैट, यू नो, पीपल हु आर बीइंग फोटोग्राफ, उनका हक बनता है कि वो आपसे पूछे कि आप कौन हो। अगर आप जेन्युइन जर्नलिस्ट हो, आपको शूट करने देंगे, लेकिन आप अगर ऐसे सिचुएशन में आप उनको पता चलेगा कि आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप ऐसे शूट कर रहे हो, then there might be a problem, you know. Okay. I think that's the same. That's the same case with everywhere. Like even if you are shooting in Chandni Chowk, that's the same case. Yes, अभी क्योंकि अब world has changed a lot. Security issues है, threats है, वो है, ये है. So nobody wants to take chance with. Yeah, exactly. Sensitive area, border है, maybe. हाँ, अभी लेकिन अगर आप कुछ ऐसा शूट करना चाहते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, जो नॉर्मल डेली, तो आई डोंट थिंक उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन यू आर फोटोग्राफिंग। अगर वो चाहता है देन ठीक है, वो नहीं चाहेगा तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ दे सेड नो, सो नो। हाँ, जो भी प्राइवेट, यू नो, एज अ जर्नलिस्ट, इवन एज अ जर्नलिस्ट, आप किसी की प्राइवेट लाइफ में या प्राइवेसी को इन्वेड करके शूट नहीं कर सकते। अगर वो पब्लिक स्पेस में है, देन यू आर अलाउड टू डू। लेकिन ओके जैसे आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते। ओके whether it's a photo journalist or a normal photographer, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। if they said no, so that means no. That's no. Yeah. You have to be respectful. Okay. रहा क्वेश्चन रिगार्डिंग कश्मीर का क्या था कि हाउ इजी और हाउ हार्ड। ओके, किसी ने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर योर ओन वॉर, क्योंकि उसमें आप बीच में रहते हैं। एज ए जर्नलिस्ट आपको अनबायस होना चाहिए, आपको फेयर होना चाहिए। तो जब आप बीच में इन द सेंस एक साइड में एक पार्टी है, दूसरी साइड में दूसरी पार्टी है, आप बीच में है। राइट वाली पार्टी कहती है कि आप लेफ्ट वाली पार्टी को फेवर करते हो, लेफ्ट वाली पार्टी कहते हैं आप राइट वाली पार्टी को फेवर करते हो। तो जैसे होता है जब हम कभी शूट करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो इंडिया की तरफ से शूट करते हो, मतलब आप हम, और जब हम सिक्योरिटी फोर्स की तरह के वो करते थे, आप तो कश्मीरी हो, आप तो उनका फेवर करोगे। सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एज अ जर्नलिस्ट you have to be fair. जो भी हो रहा है, no matter who is at fault, you have to show that. And I think बहुत केसेस हुए कि जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन एक एडवांटेज होता है लोकल्स का कि लैंग्वेज आप जानते हो। yes. पीपल। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में लैंग्वेज नहीं है, सो वहाँ पर एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है अनलेस आपके साथ कोई आपका ट्रांसलेटर साथ ना हो तो। एंड स्पेशली यू आर शूटिंग ऑन अ सेंसिटिव एरिया, वो तो फिर और भी डिफिकल्ट हो जाता होगा। नॉर्मल प्लेसेस पे तो चलो पीपल कैन अंडरस्टैंड, बट ऑन सेंसिटिव एरियाज it's very difficult. I have lots of questions and आपका मेरे को पहले ही गरिमा ने बोला था कि सर से बोल दियो कि मैं आपके 2 घंटे लेने वाला हूँ, तो सेकंड लाइन में स्टार्ट कर दूंगा। It's already 1 hour.
Now, yeah, it's already 1 hour because Instagram live automatically 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है. It's not अच्छा, allow above 1 hour. ओके, So हाँ हाँ, might be अगर क्योंकि I have lots of questions. अभी तो आधे क्वेश्चन ओके, भी नहीं हुए मेरे. ओ So तेरी might be I will start another. So yeah. Jay Thakur asks you, as a photojournalist in Wire Agency, how it is important for you to be new. Yeah, आपने actually जवाब दे ही दिया. Neutral while portraying your story, personally as well as professional. So I think you already gave the answer yeah, I of mean, that. Yeah. Uh, the these basic, days, I you know, yeah, sorry, yeah yeah say. yeah continue. No no No, continue, sir. I was going to say कि, the first and foremost rule of a journalist is to be fair and truthful. अगर आप वो नहीं है तो you are not supposed to be called yourself a journalist. तो अगर Yes. आप Okay. अगर आप fair हो तो आप journalist हो, अगर आप नहीं हो तो आप कुछ भी हो लेकिन you are not a journalist. Oh, that's a very good line because no one said that. Because this is something good. आजकल I have seen that people love to read books. So, is there any books you would like to suggest to the viewers? I ask this मैंने question to everyone so that मैंने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी है. I photography related कोई भी नहीं है. नहीं, I read recently one book which is pretty old, जो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी होगी, The Alchemist. I love that. That's my only book I have read. That's it. मैं पढ़ता नहीं हूँ. चलो कोई और भी मिला मुझे मैं इद्रिस सर को बोल सकता हूँ नेक्स्ट टाइम कि मेरे जैसा एक और है जो बुक नहीं पढ़ते. हाँ, मैं फोटो देखता हूँ. तो हाँ नहीं, even I saw the photo. I love the Magnum की contact sheet book, and I also have a C McCurry की book. So I love to see the old photograph, that how those photographers click. So okay, let me come to the another question जो कि इसी से related है. How important is to read the master's work? It is, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं दिल्ली में था, तो मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं था फोटोग्राफी. मैंने एक बुक खरीदी थी. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो त्रिवेणी में फोटोग्राफी क्लासेस होते हैं, यस, कला संगम में, या कला संगम में, तो मैं वहां गया था एक बार एडमिशन के लिए, जिन दिनों में स्टार्ट करा, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला. देन हाँ, तो फिर मैंने किसी से पूछा कि मैं मतलब कौन सी ऐसी बुक है जो मैं पढ़ के अंडरस्टैंड हुए. सो somebody suggested कि I should get a book written by R.K. Sharma. R.L. Sharma और R.K. Sharma. वो छोटी सी बुक है. O.P. Sharma. Yes, O.P. Sharma. Thanks so much. O.P. Sharma. So I got that book. लेकिन I don't know कि ये दिमाग में था या ये नेचुरल था या ये बुक पढ़ने से आया. जो भी मैं पढ़ता था, जो भी मैं पिक्चर देखता था, तो मैं एग्जैक्टली मैं सोचता था कि मैं इस सिचुएशन में यही फोटो उठाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा. तो देन मुझे लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ. उसमें एक्सपोजर का दिया हुआ है कि एक्सपोजर क्या होता है, ग्रे स्केल, कलर, एक्सपोजर, लाइटिंग. सो दैट वाज द ओनली थिंग आई रेड. एंड जो प्रैक्टिस करके आप सीखते हो ना, वो बुक पढ़ के नहीं सीख सकते आप. यस एग्जैक्टली, मैं प्रैक्टिस के अलावा आप पढ़ के तो नहीं सीख सकते. एग्जैक्टली. So let me restart the live again because I only have a 3 minute left and योगेश सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है और ताशी भाई ने भी एक अच्छा क्वेश्चन भेजा है. So I want to continue live. ताशी भाई भी लाइव पे. So let me reconnect the live and stay tuned guys. I'm starting second part. First time हो रहा है मेरी लाइफ में कि second पे आ रहा हूँ मैं. So अल्ताफ भाई rejoin again. I love to talk about that. गरिमा को मुझे पहले से पता था कि आपका सेशन बहुत लंबा जाना. उसने मुझे पहले बोल दिया था कि अल्ताफ भाई को बोल दियो. गरिमा ने क्वेश्चन दिए थे, उसका जवाब नहीं दिया मैंने अभी तक. सॉरी, कल लिखूंगा. So let me come to the another question by Jay. Like as you have so much in your childhood, as you have seen so much in your childhood,
how and what extent it has impacted your personal life? Like आपने जो कुछ देखा है तो आपकी personal life है या journalist life है? It has impacted totally. uh, मतलब जब भी आप शूट करने के बाद घर आते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि उस टाइम पे सिचुएशन में आप काम में बिजी रहते हो तो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन एज सुन एज यू कम बैक टू तो ये जब जो भी आपने दिन में देखा है इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, थोड़ी थोड़ी दिन में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड देन समटाइम्स इट कैन नो आउटबर्स्ट विद द रिजल्ट आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप मतलब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ सोचना, नींद नहीं आना, PTSD। सो ये सब चीज़ें हुई है कि नींद नहीं आती थी, नाइटमेयर्स या डिप्रेशन, देन यू हैव टू टेक मेडिसिन। तो मैंने लगभग 1 साल की मेडिसिन खाई है। ये कश्मीर में रह के नहीं हुआ, इट हैपेंड व्हेन आई केम टू दिल्ली। तो यहाँ पर फिर सब ठीक ठाक था, ऑल ऑफ अ सडन जो भी एक्यूमुलेट हुआ था वो उभरने लगा, एंड देन यू नो या सो इट रियली डज अफेक्ट यू। वो that's a very maybe I think हर किसी की लाइफ में ये मोमेंट आता है yes, sometimes see, you know। आदमी है, humans have tendency to, humans ऐसी चीज है कि इसको जितना सप्रेस कर सकते हो उतना सप्रेस कर सकते हो, ये उतना लेती है, लेकिन at one point of time it you know it shows effects also। तो आप strong बन सकते हो for some time, लेकिन you can't be strong all the time। Okay. Umesh Gogna is also join us and he said कि अल्ताफ भाई को एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग एंड कैंपिंग का बहुत शौक है, कुछ इसके बारे में भी बताइए। That was actually an escape route to escape from the realities of STI and photojournalism and all that. I love traveling and off-roading. I love going to mountains. I used to trek. उसके बाद जब ट्रैकिंग से मन नहीं उब गया, थोड़ा सा वो क्या होता कि आप सेम फिजिक में नहीं रहते, देन जब गाड़ी आती है तो कहते हैं चलो कोई नहीं गाड़ी में ही चलते हैं। So that's how it's that's why I think that's why Yogesh sir is asking about your car thing every time। he's sending that message car वाला पूछो। So then I decided कि मतलब साल में 1 या 2 बार तो जाना ही जाना है कहीं पे, लद्दाख, हिमाचल या कहीं पे भी, to have some time off and explore, you know, do some landscape या just be there, and then वो ऐसे ही start हुआ, and then I decided to modify my SUVs। SUV को मैंने modify किया 4x4, उससे थोड़ा सा ऐसा मिलता था कि कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं। I would spend, you know, I customized a tent on my Bolero। तो उसमें मैंने बहुत सी जगह गया मैं, and it was really fun। Oh, nice. Then we can go together to Spiti someday। Yes, I'm getting I'll show you some great places for camping। I met an accident recently, so that car had got damaged। Oh, okay। मेरा नेट स्लो है या आपका नेट स्लो हुआ? I just want to ask so that I can connect my 4G or 3G, I don't know। पता नहीं आपका। प्राशिक ने पूछा है अच्छा मेरा हुआ है क्या? अभी ठीक चल रहा है, I think। Let me Prashik asked the toughest situation you faced ever। That was again in Libya, which I Libya one, yeah, that was a close shave। Okay। And
this I asked this question to Tashi bhai as well. So Dimpy ने ये question भेजा था. What is your take on the ethical dilemma faced by the photojournalist when confronted with the choice between capturing an image or saving the life? Also taking into the account the life of the late South African photographer Kevin Carter. It actually happens in a moment. जब आप कोई डिसीजन लेते हो, सो इट मे नॉट बी द बेस्ट डिसीजन, लेकिन जो आप उस टाइम पे लेते हो इट्स योर इंस्टिंक्ट, और वो इंस्टिंक्ट आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से आता है और आपकी अपब्रिंगिंग से आता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको वहाँ पर सारे एथिक्स एंड रूल्स रेगुलेशंस सारे ऐसे के ऐसे रह जाते हैं जब आप सिचुएशन में होते हो. लेकिन जो मेरा मानना है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप खाली आप ही वहां पर सिचुएशन में हो और आपके हेल्प से किसी की जान बचेगी, डेफिनेटली मैं जान बचाऊंगा. लेकिन अगर आपके अलावा वहां पर कोई और भी लोग होंगे जो हेल्प कर सकते हैं, तो आई वुड रादर स्टिक टू शूटिंग एंड लेट अदर्स हेल्प दैट गाय, और जो भी सिचुएशन हो रहा है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. एक बार 2009 में या 7 में there was an attack on a Congress rally in Srinagar. So तो मैं जब अटैक हुआ तो हम लोग सभी जर्नलिस्ट भागे उस जगह पे आए. सो बाय द टाइम हम वहाँ पर पहुँचे, अभी फायरिंग चल रही थी, लोग भाग रहे थे. somehow I managed to sneak, ज़्यादा अंदर ही मैं घुस गया और मैंने लोगों को भागते हुए देखा. तो जैसे मैं वहाँ पर क्रॉल कर रहा था, क्योंकि फायरिंग चल रही थी तो कहीं भी लग सकती, तो मैं साइड वॉक होता है, मैं वहाँ पर डक करके बैठा हुआ था. देन आई सॉ समथिंग इन द नाली जो होती है वहाँ पर, एंड आई सॉ देयर वाज अ कॉप हु वाज डेड in the gutter. और एक कॉप जो इसके टांग में गोली लगी थी, उसको 2 लोग पकड़ के ला रहे थे हेल्प करके, तो मैंने उसको हेल्प किया. और जो ये डेड बॉडी थी कॉप की, there were 2 cops who were trying to get the body out of the drain, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था. तो मैंने कैमरा नीचे रख के उनकी हेल्प की उसको उठाने में. और वहाँ पर तो ऑलरेडी उसका he was already dead, तो वहाँ पर सेव करने का कोई चांस नहीं था. लेकिन in Afghanistan once in Kabul there was attack on UN compound, जहाँ पर UN स्टाफर रहते थे. So I somehow managed to go inside another building adjacent to that which was attacked. तो उसकी बिल्डिंग पे पहले फ्लोर पे एक जर्मन स्टाफर था, इसके पैर में कुछ चोट आई थी और he was trying to get off from that roof. लेकिन वहाँ पर खाली 2 अफगान पुलिसमैन थे जो उसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे. तो मैंने शूटिंग छोड़ के I helped those Afghan policemen to get that guy down. और जब वो नीचे आ गया, then I started shooting. क्योंकि उस टाइम पे हाँ, मे बी हो सकता है मैंने पहले एक फ्रेम खींचा होगा, and then I helped him, उसको नीचे लाया, and then I start shooting again. That's what you can do. But the story is you held him. You helped him. Yes, I did. Regarding Kevin Carter, I was watching जब ताशी उसके बारे में बोल रहा था, and he really nicely explained कि क्या हुआ था, और
उसके उसके उस फोटो की वजह से स्टोरी जहाँ जो वहां पर हो रहा था, इट इट वाज समहाउ स्टॉप्ड एंड हेल्प वाज सेंड, क्योंकि उसके वो फोटो अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे पब्लिश हुआ था, एंड Yes. दैट प्रॉम्प्टेड वर्ल्ड टू see what was going on there. Yes, yes, yes. And I think that there are some people who always see the negative in even the good things. So I think अगर अगर कोई आपने जैसे अभी अपना स्कूल वाला जो शेयर किया, that स्कूल अंडर ब्रिज वाला, तो someone can say कि आप शूट कर रहे थे, आप उनको पैसे भी दे सकते थे, आप उनकी मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते थे, आप शूट ही कर रहे थे, बट वो ये नहीं देखते कि बिकॉज ऑफ योर शूटिंग नाउ द स्कूल हैज डेवलप्ड अ लॉट. सो समटाइम्स आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आफ्टर शूट क्या हो रहा है, चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी फोटोग्राफ. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. हाँ, लोग जो लोग ये कहते हैं वो ये नहीं समझते कि चलो अगर मैं उसको हेल्प भी कर सकता था, मैं उसको कितना दे सकता था, 1000, 2000, 3000. Yes, exactly. लेकिन जो उसको अभी हेल्प मिल रही है वो उसको रेगुलर हेल्प मिल रही है, जो रेगुलर हेल्प मिल रही है, एंड बहुत लोगों से मिल रही है, और सारी टाइप की हेल्प मिल रही है उसको. लोग वहाँ आ जाते हैं, वॉलंटियर्स पढ़ाने के लिए, लोग खाना वहाँ पर सर्व करते हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चीजें मिलती हैं बच्चों को, एजुकेशन मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एग्जैक्टली, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस चीज में. ऑब्जेक्शन होना चाहिए. यस, you always see the bigger picture. Yes. अगर आप किसी जंग में किसी एक बच्चे को बचाओगे, लेकिन अगर उस एक्ट में आपके शूट करने की ना करने की वजह से स्टोरी नहीं चली गई, तो आप हजारों बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खाली कुछ नहीं कर पाओगे. ये ऐसा नहीं है कि yes, exactly. मैं जानबूझ के उस बच्चे को नहीं बचाऊंगा. इट्स नॉट दैट. ये है कि प्रायोरिटाइज कैसे किया जाएगा. आप उसको भी बचाओगे, लेकिन आप पूरी स्टोरी भी बताओगे कि क्या हुआ. Yep. That's good. Kajol has asked, how has photojournalism changed from when you started out now? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब से अब तक, what are the things? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं सोच रहा था फोटो जर्नलिज्म के बारे में, और जब मैं डीटीपी ऑपरेटर था इन न्यूज़पेपर, तब इंटरनेट नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एजेंसी क्या होती है, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स कौन है, मुझे किसी का नाम नहीं पता था. आई हैड नो आइडिया. वो तो तभी पता चल गया जब मैं जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, और जब इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स यूज्ड टू कम टू कश्मीर. So I remember Emmy Vitali gave me four copies of World Press photo books, 2008, नहीं 2003, 4 or 5 or 6 की कुछ ऐसी. तो उससे then I realized कि दुनिया कहाँ है और कैसी फोटोज लेनी चाहिए, कैसे, what perspective, what angles, what lens, what light, वो धीरे धीरे मैं समझ रहा था कि कैसे, मतलब फोटो जर्नलिज्म का सीन क्या है, how does international photojournalism work. ओके. तो आपने फोटो जर्नलिज्म का कोई कोर्स किया है? नहीं किया. सो मतलब कि जरूरी नहीं कि आपको फोटो जर्नलिज्म का कोर्स करना हो, बट अगर आपके अंदर वो आंख है टू डॉक्यूमेंट द प्लेसेस, टू शूट द प्लेसेस, सो people can do that thing. Like Adil Abbas also asked, any suggestion for documentary photographers? See, education. So I think the same question. Education आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली. ये ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है. इट कैन हेल्प यू टू सी थिंग्स मीन्स कि किस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर सकते हो, एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है,
कैमरा के बारे में, कैमरा कैसे काम करता है, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म. सो इट्स नॉट ऑल वेस्ट. आप ये नहीं समझिए कि अगर कोई फोटो स्कूल जाता है तो उसने वो अच्छा and he फोटोग्राफर wastes. बन जाएगा. हम्म. So ना ना. हाँ, तो सॉरी, मेरा या कॉल आ रहा था. मेरा नेट रुक रहा है, आपका नेट रुक रहा है. हाँ, ना ना, इट्स ओके, नहीं इट्स एक्चुअली मुझे ओके. कॉल आ रहा था, कॉल आ रहा था. ओके ओके. सो या जी अल्ताफ भाई. तो आई मीन एजुकेशन इज गुड. इट्स नॉट समथिंग बैड. लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो आपके एक्सपीरियंस से, आपकी प्रैक्टिस से और आपके अंदर से आती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि आपको कैसे किस चीज को देखना है. आपको गाइड कर सकता है. यस. अगर मैं किसी का मेंटर बनता हूँ, मैं उसको अपनी आंखें या अपना दिमाग नहीं दे सकता. आई कैन ओनली गाइड हिम कि कैसे कर सकते हैं. फिर उसको सोचना और समझना उसको खुद है. लेकिन फिर खुद है. ओके. फिर with practice he or she can learn, and they can imbibe the जो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी नुआंसेस है. या ओके. विद कश्मीर ने पूछा है, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट यू वांट इन योर स्टोरी और अ फ्रेम? अल्ताफ साहब. बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी लाइट. कि लाइट कैसी है और उस लाइट को कैसे यूज किया जाए. एंड देन एंगल इन पर्सपेक्टिव, और द चॉइस ऑफ लेंस, किससे मैं शूट करूंगा. Okay. I'm not going to take your more time. Just 3 more questions, and then I can end this because आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है पहले से. काजोल ने बोला है, how do you prepare yourself before any assignment or reportage? Any assignment. Depends करता है. If it is something where I have to travel outside, then definitely that involves a little bit more more time and equipment and stuff. लेकिन अगर रेगुलर असाइनमेंट होता तो I don't think उसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ता. हाँ, as soon as I leave, I check camera exposure and settings, because sometimes all of a sudden you can find something which you want to take picture of. और उस टाइम पे अगर आपका सेटिंग आपकी रात वाली सेटिंग होगी तो खत्म. सो जब भी आप जाओगे, ऑलवेज चेक आपकी बैटरी है, आपकी सेटिंग कैसी है. अगर आपको कुछ अचानक मिलता है तो would you be able to take a proper picture. So that's the only thing. And see okay, and cool, which lenses to carry. Obviously अगर कोई ऐसा है कि जो से दूर से शूट करना होगा तो I might carry a tele lens. और अगर ऐसा नहीं है तो normal lenses you might Okay. Let me end with the last question. Any tips? What are your tips for aspiring photojournalists, and how should they approach news organization or enter this field? First of all, start photographing. और जितना भी आप शूट करते हो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है. और don't shoot only single pictures, क्योंकि एडिटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगल पिक्चर्स. क्योंकि आपकी काबिलियत और फोटो स्टोरी, आपकी काबिलियत सिंगल फोटो से पता नहीं चलती है. आपकी काबिलियत आपकी फोटो स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्री से चलती है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि आप कैसे देखते हो, आप कैसे स्टोरी को फॉलो करते हो, आप कितना रिसर्च करते हो. और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फोटो एडिटर के पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी ये 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज मैंने की और ये कुछ सिंगल्स है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, he knows something even before starting actually. तो
ये क्या कहते हैं उनका आपके लिए इम्प्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू चेंज हो समबडी जाता है, जो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। यस, हाँ, जो एज कम्पेयर टू समबडी जो खाली 50 फोटो सिंगल लेके आएगा, तो क्योंकि आप सिंगल में आप जज नहीं कर सकते हो। सिंगल फोटोज कैन बी मेड बाय शेयर लक। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मिल गया तो इट्स ग्रेट, लेकिन जो स्टोरीज होती है वो उससे पता चलता है कि आपकी डेप्थ कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप क्या करते हैं। yes, okay. So last question, just last question, sorry. Garima asked, what is the right way to pitch your story to the editors? I think that is you already answered, I think. हाँ, सी जब आप पिच करने से पहले उनको पता चलना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है। तो उनको ऐसे पता चलेगा जब वो आपकी स्टोरीज देखेंगे, आपका काम देखेगा, एंड देन ओनली they should know that you are serious, you are capable that of you are doing serious what you photographer. are suggesting or what you are pitching. तो वो मालूम होने के लिए आपको पहले उनको काम दिखाना पड़ेगा। Okay, cool. Let me end this session because बहुत लंबा हो चुका है आपके लिए। I know कि आप you are shooting and you are busy in the work as well. So thank you so much Altaf bhai for coming on the live session. Thank you, Nimit. And I hope कि thank you so much, and I hope कि आपको भी थोड़ा मजा आया because people just love the session. Yeah, I loved it. Because I have seen this, I have seen from the last few months now, people love journalism kind of, journalists more and the documentary photographers more. They are not like the travel photographer like me जो जाते हैं सिर्फ क्लिक करके ले आते हैं। वो journalists और documentary photographers को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। They started following them as well. Even I started documenting places because I think a documentary is something which is very important as a future. the future you can think about. So thank you so much. आपकी stories तो हमने वैसे ही पढ़ी है। If anyone wants to read more story इनके और भी travel वाले, लिबिया वाला, especially लिबिया वाला अगर आप पढ़ना चाहें तो अल्ताफ भाई की वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके पूरा इनसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको अल्ताफ भाई के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। You don't need to go anywhere else. Thank you, Nimit. So thank you so much Altaf bhai. Thank you so much. I'll see you soon after Corona. Yes. I'll see you after Corona. Thank you so much. Yeah. Bye. Thank you so much. Bye bye.